السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بھارت راشٹر سمیتی کے ورکنگ صدر کیٹیا نے حکومت کو انتباہ دیا ہے کہ اگر کالیشورم پروجیکٹ میں موٹروں کو آن نہیں کیا گیا اور 2 اگست تک پانی نہیں اٹھایا گیا تو ہم 50,000 کسانوں کے ساتھ موٹروں کو آن کر دیں گے۔ انہوں نے کانگریس حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ KCR پر دھڑے بندی کے ساتھ کسانوں کے منہ پر مٹی ڈالنے کے برے خیال کے بارے میں نہ سوچیں۔ KTR کی قیادت میں BRS MLAs، MLC اور دیگر قائدین کی ایک ٹیم نے BRS پارٹی لیڈر KCR کے حکم پر 2 دن تک فیلڈ سطح پر کالیشورم پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ فائرمین پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ فائرمین کی تربیت مکمل کر لینے والے تمام نوجوانوں کو میری نیک تمنائیں۔ آپ کو اس طرح تربیت یافتہ ہوتا دیکھ کر آپ کے والدین کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہوں گے۔ جس امید کے ساتھ نوجوانوں نے تلنگانہ کے لیے جدوجہد کی تھی، وہ امید پچھلی حکومت نے پوری نہیں کی۔ کانگریس حکومت کے اقتدار میں آتے ہی تعلیم یافتہ نوجوانوں میں دستاویزات ملازمت دیے گئے۔ عوام کی حفاظت کے مقصد سے ٹریننگ حاصل کرنے پر آپ سب کو مبارکباد۔ یہ حکومت عوامی سوچ اور عوامی رجحان کی نسبت سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہریانہ میں کانگریس کو معمولی برتری حاصل ہوگی۔ پیپلز پلس سروے میں یہ انکشاف کیا گیا ہے۔ BJP جو دوبارہ اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے، حکومت کی 10 سال کی مخالفت کی صورت میں سرد مہری کا سامنا کر رہی کانگریس اس کا فائدہ اٹھانے اور ہریانہ میں واپسی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر انڈیا الائنس کو لوک سبھا انتخابات میں ہریانہ میں عوامی حمایت حاصل ہو جاتی ہے تو اقتدار کی منتقلی آسانی سے ہو سکتی ہے، لیکن اتحادی شراکت دار کانگریس عام آدمی پارٹی اس بار الگ الگ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر تلنگانہ سیکریٹریٹ میں بونال فیسٹیول کا شاندار انعقاد عمل میں آیا۔ ان بونال تہواروں کے موقع پر ریاستی وزراء پونم پربھاکر، کنڈا سریکھا اور ریاستی حکومت کی چیف سیکریٹری شانتی کماری نے سیکریٹریٹ میں نلا پوچما کی پوجا کی۔ وزراء پونم پربھاکر، کنڈا سریکھا اور شانتی کماری نے دیوی نلا پوچما کو بونم پیش کیا۔ حلقہ TDP تیلگو مہیلا صدر گنڈو شنکر کی اہلیہ گنڈو سواتی شنکر نے کہا ہے کہ کلپاولی شری مانسا دیوی اتر آندھرا کے لوگوں کی سونا ہے اور ان کی خواہشات کو پورا کرتی ہیں۔ سواتی شنکر نے چیپور پلی کے رامالنگیشور گاؤں کی شری منسا دیوی اماں سے ملاقات کی اور خصوصی پوجا کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آج کے معاشرے میں ہر ایک کو روحانی فکر اور عقیدت ہونی چاہیے۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار پیر طریقت حضرت میر نصرت علی قادری چشتی صابری نے 25 جولائی کو بعد نماز مغرب خانقاہ محمد اجمیری نصرتی عادل آباد میں منعقدہ مجلس بضمن شہادت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ نصرت علی قادری چشتی نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ خانقاہ محمدی میں اہل بیت اطہار اور اولیاء کی نسبت کی مجالس کے انعقاد کا مقصد ان کی عظمت اور محبت امت میں پیدا کرنا ہے، جو کہ ایمان کا اصل جز ہے، جس سے آج یہ امت بہت دور ہو چکی ہے۔ حضرت نے اہل بیت سے محبت سے متعلق تفصیلی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص دنیا میں اہل بیت سے محبت کرے گا اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے گا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنا مہمان قرار دیتے ہوئے آخروی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ اس مجلس میں کثیر تعداد میں مریدین و متوسلین نے شرکت کرتے ہوئے حضرت کے بیان سے استفادہ کیا۔ بعد مجلس لنگر کا بھی نظم کیا گیا۔ جس کو سجاد
पे आते हैं। बल्कि तुझे क्या करना पड़ेगा, खुदा ने लाया, मेरे महबूबा फरमा दीजिए कि कर्ज मेरा है तुम्हारी उम्मत के ऊपर, तुम्हारे दीन और तुम्हारे कुरान का, कि वो तुम्हारी अहले बैत के साथ मोहब्बत करे, कि मवद्दत फिल गुरबा, तुम्हारी अहले बैत से वो मोहब्बत करे। इतना हक कुरान का मौजूद है, लेकिन तुम्हारी ज़बानों पर, तुम्हारे दिलों में सवाल पैदा नहीं होते कि जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं उनको ये क्यों नहीं कहते कि उनके तस्करे मिंबरों से क्यों नहीं हो रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि ऐ मेरे महबूब, ये आपके नहीं मेरे कर्जदार है, मेरा कर्जा इन्होंने अदा नहीं किया, अब कर्जे अदा न कर। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव ने हैदराबाद सेक्रेटेरिएट में वजीर पूनम प्रभाकर से बहैसियत मेहमान खुसूसी मुलाकात की। पंचायती राज इंतखाबात के इनेकाद पर सीएम रेवंत रेड्डी की जायजा मीटिंग के पस मंजर में वी हनुमंतराव ने वजीर पूनम प्रभाकर को ज़ात की गिनती मुकम्मल होने के बाद ही पंचायती राज के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अर्जी पेश की। महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 681 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ओहदेदारों ने बताया कि रेवेन्यू से मुतल्लिक़ मसाइल से मुतल्लिक़ 69 दरख्वास्तें, महकमे सिविल सप्लाई से मुतल्लिक़ 132, महकमे बिजली से मुतल्लिक़ 87, हाउसिंग से मुतल्लिक़ 232, पंचायती राज देही तरक्की के महकमे से मुतल्लिक़ 31 और दीगर महकमों से मुतल्लिक़ 130 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। तेलंगाना के वजीर खजाना मल्लू भट्ट विक्रमार्का के पेश करदा बजट में हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए तकरीबन 10,000 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। जीएचएमसी के कॉरपोरेटर्स, मेयर, डिप्टी मेयर्स, जिन्होंने जीएचएमसी के लिए 3,065 करोड़ रुपए मुख्तस करने पर खुसूसी तौर पर सीएम रेवंत रेड्डी और मल्लू भट्ट विक्रमार्का का शुक्रिया अदा किया और मिठाइयां खिलाई और एक दूसरे से मिलकर जश्न मनाया। उन्नीस सौ 99 की कारगिल जंग में पाकिस्तानी अफवाज पर फतेह की ख्वाहिश और हिंदुस्तान के बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को याद करते हुए अखिल भारतीय युवा जना समीक्षा ने राष्ट्र समीक्षा समिति के ज़रिए एहतमाम टैंकबंड के सामने एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर खिताब करते हुए AIYF के रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी वलीउल्लाह कादरी कलवेंद्र धर्मेंद्र ने कहा है कि हिंदुस्तान हर साल 26 जुलाई को 1999 की कारगिल जंग में पाकिस्तानी अफवाज पर फतेह की याद में कारगिल विजय दिवस मनाता है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि यह हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, जुर्रत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करे। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को धोखा दिया है, 4,000 करोड़ का वादा करके इन्हिराफ किया, आयमा व मौजनिन के एजाजिये में इजाफा करने का वादे से फिर गई, आयमा मौजनिन के जज्बात से भी खेला किया। कि अगर तेलंगाना सरकार हमारे रियासत के आयमा मौजनिन के लिए 12,000 और 10,000 इजाफे का लिए बजट जारी नहीं करती है तो हम इसके ख़िलाफ़ हम सख्त एहतजाज करेंगे और हम कांग्रेस सरकार के चेहरे पर ये दोगलापन का जो नकाब पड़ा हुआ है वो निकालेंगे। तो आज ये बात सामने आ गई है कि कांग्रेस ने जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में 4,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज़ को बजट देने का जो वादा किया था, आज वो अपने वादे से फिर गई है और सिर्फ 3,003 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसमें सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है और बुद्ध भी है और मुसलमान है, 5 कम्युनिटी है। तो कुल मिलाकर के अब मुसलमानों को क्या मिलने वाला है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और एक कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर ये बदनीयती का मुजाहरा किया कि सब प्लान का जिक्र नहीं किया गया, सब प्लान का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो यानी इस बात की भी गारंटी। आदिलाबाद म्यूनिसिपल साबिक वाइस चेयरमैन ज़हीर रमजानी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत के जरिए पेश करदा बजट में अक़लियतों की फलाह व बहबूद को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन ने रियासती बजट में अक़लियतों को तरजीह देते हुए फंड्स मुख्तस करने पर शुक्रिया अदा करते हुए आदिलाबाद शहर मुस्तकिल में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की फ्लैक्सी को दूध से नहलाया। इस मौके पर ज़हीर रमजानी ने कहा कि तमाम तबकात को यकसां तरजीह देने का सहरा
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के सर जाता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने हाल ही में जो बजट पेश किया है वो बराए नाम बजट है। इस मौके पर अक़लियती कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। आज प्रजा भवन में माइनॉरिटी की तरफ से रेवंत रेड्डी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए आज हम दूर से उनका स्वागत किए हैं कि माइनॉरिटी के लिए जो 3003 जो बजट सैंक्शन किए हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम माइनॉरिटी की तरफ से रेवंत रेड्डी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप देखिए गुज़िश्ता जितनी भी सरकारें थी 22 से ज़्यादा कभी जो है सो फंड्स और बजट नहीं लगाए। आज कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर वो मज़हब गंगा जमुना तहजीब की तरह जो काम कर रही है। आप देखिए पार्लियामेंट से लेकर हर वो स्टेट में कांग्रेस पार्टी हर वो मज़हब को लेकर चल रही है। उसकी मिसाल यही है कि आज तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी यादगिरी जिले हेडक्वार्टर पर वंदे भारत समेत तमाम एक्सप्रेस ट्रेनें उमेश मादना ने उसे रोकने के लिए इख्तराई मुहिम शुरू की है। अगर महकमे रेलवे ने मुहिम का जवाब ना दिया तो 5000 अफराद को शामिल करेंगे और रेलवे स्टेशन का घेराव करने का इंतबा दिया। कर्नाटक प्रदेश कुली समाज के रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और समाजी कारकुन उमेश ने गम व गुस्से का इजहार किया कि जिले हेडक्वार्टर होने के 14 साल गुजरने के बावजूद जिले में तकरीबन 8 एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुकी। ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ 14 ವರ್ಷ ಗಚ್ಚರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇನ್ನು 8 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ। ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇನ ದಿನನಿತ್ಯ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಗಾಡಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಕ್ಕಲ್ಲ। ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ। ಈಗ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಮರು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗದ। ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹಂತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 10,000 ಜನ ಸೇರಿಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುಂತಕಲ್ಲು DRM ಸೋಲಾಪುರ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನದ? ಇದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ದಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲತ್ತೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಚಾಲುವಾಗಿರಲಾರದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣವಲ್ಲ। ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ರಿ, ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದೇನೆ। JKECC-ST विंग जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हाल ही में चेक मार्क एरजल पर वाक़े कटारी रेस्टोरेंट में एक मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में ST विंग के आर्जी सदर कश्मीर मुश्ताक अहमद कटारी के साथ फारूक अहमद खारी नायब सूबाई सेंट विंग के सदर ने शिरकत की। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि JKECC ने एक विंग खड़ी की है, ST विंग, ST मोर्चा, जो शेड्यूल ट्राइब STGB शेड्यूल ट्राइब गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए है सर। तो सर हमारी एक यहाँ पे मीटिंग हुई, इस मीटिंग में हमने ये मतलब बहुत सारी मैसेजें अपनी हर एक जवान को हर एक को पहुंचाई कि हमारे समाज में जो ड्रग अब्यूज़ का सर जो सिलसिला है ये बहुत ही तेज़ फैल रहा है। तो इस ड्रग अब्यूज़ पे हम सारे ST मिलकर काम करेंगे और मैसेज पहुंचाएंगे कि ये जो ड्रग की एडिक्शन है ये हमारे बच्चों के लिए भी हमारी बहनों के लिए भी बुरी साबित आती है। सर हमारी डिमांड ऐसे बहुत सारी हैं कि हमारे कुछ रुके मसले सर हैं, जैसे कि सीजनल टीचर्स हैं सर, जिनके 9 महीने का सर आर्डर तो आया है लेकिन सर अभी तक वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो सर हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नर LG से कि सर ये जो उनका रुका वो मसला है 9 मंथ का, तो सर वो जल्दी से जल्दी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो जाए।
की मीटिंग यहाँ पे बडगाम पे हुई। इसमें गांदरबल और बडगाम के जो मंदोबीन थे उन्होंने शिरकत की। इस मीटिंग में ख़ास बात ये हुई कि हमारे एसटी के जितने बड़े मसाइल हैं, एक तो समाजी बुराइयाँ जिनसे हमारी जो सब अल्टर्न कल्चर है, गोजरी कल्चर, गोजरी माशरत, उसके साथ साथ हमारी जो दूसरे माशरत बरादरियाँ हैं वो भी जूझ रही हैं। हमें उसमें भी जा कर के काम करना है। इसके अलावा ख़ास करके बरादरी की अपलिफ्टमेंट के लिए अगर एजुकेशन के हवाले से बात करें तो उस पे हमारी बात जो है वो हुई। ये ज़ोर दिया गया, इस बात पे हम फोकस करेंगे फ्यूचर में कि हमारी बरादरी। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो धरानी के मसाइल को हल करने के लिए मजीद गहराई से मुताला करें। वज़ीर आला धरानी के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए इक़दाम करें। वज़ीर आला इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि तरामीम पर नए मसाइल पैदा न हो। वज़ीर आला ने तरामीम पर अवामी राय पर गौर करने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आला ने कहा है कि ऑल पार्टी इजलास मुनक्किद करके राय लेना जरूरी है। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। शिवसेना रेड्डी ने खेलों को तरजीह देते हुए तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी को 325 करोड़ रुपए की मंजूरी देने पर चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मेडचल में वाक़े भरोसा सेंटर ने अपनी दूसरी सालगिरह मनाई, जिसमें ख्वातीन और बच्चों की हिफाजत विंग डीसीपी सरोजना कर्नम, दीगर मोअज़्ज़िज़ीन और अवाम ने शिरकत की। तकरीबात ने पोक्सो और इस्मत दरी के वाक़यात के मुतासरीन की हिमायत और उन्हें बाइख्तियार बनाने में मरकज की अहम कामयाबियों को उजागर किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज का बरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।